Hi guys, welcome to book club meet number 4. Today we have Shubham sharing with us. क्या नाम है? Debt, the first 5,000 years by David Graeber. So first, initially, I'll tell the ये वही है ना? outlook of the writer a little so that you know his biases. So that guy is a little on the anarchist side. So he's an anthropologist basically, and he's anthropologist plus economist, and he was like the one of the founders of Occupy Wall Street movement. 100. So he's the one who has written 100 Years of Solitude. Right? नहीं, वो है Gabriel Garcia. अच्छा वो सब सेम नाम है. इसका debut was kind of between. So, like the whole book is about the history of debt in ways as to how what we understand about debt, how it is like there in every part of our life, and how do we model that subconsciously or consciously, or how it has affected the human history in terms of like since when it has been there, how it has been important. So, and to understand debt, we have to first like go through the history of money itself, because like debt till now is related to money. So people believe that money came before debt, that before money there was no debt, the concept of debt. But after people invented money, people start giving it to each other on interest, and that's how debt became. But then this guy is like, we'll go through a different definition of debt. Ki if I ask you a favor also, where I know that I have to return it back someday, like subconsciously, it's not a compulsion, but I know that I have to return it back, that also is a kind of debt. So how a basic concept of debt, like owing someone a favor, and that gets quantified, and what effect does that quantification has is what this guy is talking about. So let's say you ask me something, some shirt to use, I'll give you the shirt. I would not think about asking you the money because I know you. Now how does this dynamic change, that let's say there is someone else who's asking me for a shirt and I'll ask him money? What is the difference between these two situations? How much should I know you, or how much of a stranger the other person has to be for me to ask money in exchange of things? So his basic this thing is ki just look at first ki have you seen your parents exchanging money with their friends? Have you seen your family exchanging money when they are exchanging favors? So his first principle is ki we always maintain debts, we always maintain favors in our minds, we always know what this guy has done for me, what this guy has done for me, and it's very subjective, but we always know and we always carry that debt with ourselves, and we return back the favor without keeping account of, or without exchanging money, like without ever. So you would know that what your parents have done, and you know that you can't ever pay back, or you can't like measure that in money. So something, the concept of debt according to him was unquantifiable. मतलब पहले होता था there is no quantity associated कि अच्छा you have done this, I'll do exactly that. So there was no exact this thing. After which, and he goes through the journey of कि what would happen that this quantity would come in, and what effects would this quantification of debt have on the history of this thing. So for money, for the journey of money, we would have heard कि पहले barter था, फिर suddenly barter से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि if you need shoe and I need something and you need a third object, you have to find someone else to ये वो. तो economist, so this guy first chapter he bashes the shit out of Adam Smith कि क्या चूतिया था Adam Smith. मतलब उसने इकोनॉमिस्ट को पहले तो हिस्ट्री नहीं पता होती है, वो अपने मन से सिनेरियोस बनाते हैं और उन सिनेरियोस को ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे that guy also, Daniel Kahneman also said the same thing, like in his first chapter कि they think that humans are rational being, and that like every decision has profit in mind, immediate profit, that I have to walk away from this situation in immediate profit with immediate. So he's like, the situation is not always like that. We think about long term. So in that situation, we might also take a loss, but that is not factored in when economists make data. They make models on one transaction rather than a whole irrationality and a whole like life of an individual. So this guy is like, we start with barter. So people have said that we start with barter, but so anthropologists in a way, like they never found evidence of barter in any civilization ever. Like there is no evidence of barter in history. Ever. There is no evidence of barter. Like there is whatever evidence is there that has called this associated with, like biases associated with, but there is no evidence of barter. So now they were like, if so till now it's like barter, money, and then credit. कि money आया फिर उसके बाद you made credit objects. But this is like, so in this scenario when you say we go from barter to money, money acts as a medium of exchange.
Like money is, because we can't exchange these two things, that's why we have got a common currency, common this thing. But this is like money is first, this thing of money is not a medium of exchange, it's basically unit of account. So for example, he says that the first set of this thing were cattle and grains. कि cattle of grains की common है, सबको use करता है, everyone has it and everyone. But cattle and grains would not get exchanged actually. मतलब अगर if I am buying something, I wouldn't take a cattle with me and like give it to you. That cattle and exchange is noted down. There is a this thing as to who owes whom what, and then later when a reconciliation happens, then only you have to give money. So this is a kind of bookkeeping which involves debt, and until the settlement, when the settlement is done, then only the role of medium of exchange comes in. So you are using it as a unit of account, but then eventually it becomes a medium of exchange only if the settlement is done. You might be 3 to 4 families dealing with just like with debts, like some month you split wise होता है. so like split wise. स्प्लिट वाइज में मनी तो कुछ है ही नहीं, कभी तो मूव ही नहीं करता, मतलब तुमने दे दिए पैसे. स्प्लिट वाइज मनी सिर्फ यूनिट ऑफ अकाउंट है, मतलब मीडियम एक्सचेंज है ही वहां पे. तो क्रेडिट्स तुम कहते हो क्रेडिट्स ही होते थे, क्रेडिट्स ही होते थे. नो वन यूज्ड टू एक्चुअली गो विद ग्रेन सैक्स एंड जस्ट लाइक कि अच्छा ये हो गया पेमेंट, ऐसा नहीं होता था. वो तभी होगा जब सेटलमेंट. Basically, credit was first created. तो क्रेडिट वाज फर्स्ट. हमसे बेटर रिकंसिलिएशन सिस्टम बन गया. Blockchain is just very old concept, basically. So he is like कि वो the this thing of want कि अगर तुम्हें you want the shoe and I want like a shirt or something like that, and you don't have a shirt, I have something else, तो मतलब ऐसा होता है कि हमें तीसरा बंदा ढूंढना पड़ेगा who wants what you are giving and who is taking. So he is like that is a flawed concept. Economists have came forward in कि ऐसे दो strangers कभी ऐसे हिस्ट्री में जाके एक्सचेंज नहीं करते थे. दो स्ट्रेंजर्स मिलेंगे तो दे वुड मर्डर ईच अदर, and if they're not strangers then only they'll exchange and without money. So it's like first thing he establishes ki see how your family trades with other people. When they're stranger they don't even trade, matlab generally without, let's say there is no market exist ही नहीं करता है, then your family will just be self sufficient. जो लोग जानते हैं आपस में they will help each other and it will be a very communistic thing where no money is involved. And after when we met strangers initially तो there was only violence, मतलब कोई दूसरा ग्रुप मिलता था तो ऐसा नहीं होता था कि हम वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज केम अ लॉट लेटर उसके बाद. तो उसने बोला कि उस टाइम तक तो ऐसा होता ही नहीं था, स्ट्रेंजर से डील ही नहीं करते थे, और नॉर्मल अगर किसी को जानते हो उनसे डील करते हो तो इट इज ऑलवेज जनरली क्रेडिट, मतलब कुछ एक्सचेंज नहीं होता जनरली. तो ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ कि बहुत जगह ऐसा होता था कि कॉइन्स गायब हो चुके हैं सर्कुलेशन से, पर अभी भी लोग उसी को यूज कर रहे हैं. मतलब इन टर्म्स ऑफ किसी एक विलेज में कोई गाय है ही नहीं, पर वो अकाउंटिंग गाय के टर्म्स में कर रहे हैं. ग्रेन अभी आया ही नहीं है, मतलब ग्रेन आएगा जब वो होगा, फसल वो कटेगी, पर वो अकाउंटिंग के लिए वही यूज कर रहे हैं. तो देवर लाइक जब लोग जानते होते हैं एक दूसरे को तो पहली बात तो कोई वही नहीं करता है, एक्सचेंज होता ही नहीं है, मतलब सबको याद रहता है कि क्या किया था आराम से. अगर लिखते भी हैं तो भी उसमें एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट यूज होता है. फिर अगर स्ट्रेंजर्स इंटरेक्ट करते हैं then only money is used for medium of exchange. You wouldn't pay money to your dad, you would pay money to the shopkeeper you don't know. So only when you don't know someone, then only money is medium of exchange value comes in. So he is like, when you want a shoe, I want a shirt, and we can't come to terms, you have to define ki what is the relationship between these two people. Are these two people strangers? Like according to me, if we are friends, I would give you the shirt anyway. कि कभी फ्यूचर में तुम्हारे पास कुछ होगा जो मुझे चाहिए होगा, या तुम्हें किसी और से कुछ मिलेगा, तो ऐसा होता था कि you would have seen in like villages and like normal places where community is strong, एक बंदे के पास कुछ है तो वो सबको यूज कर रहा है, उसके पास वापस आएगा किसी दिन, सब लोग बोर हो जाएंगे फिर वापस, और सबकी चीजें सबको यूज कर रहा होता है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब उसको पता होता है कि whoever I am giving I will also get it back. तो जनरली he says कि मतलब it is the base of the economy, the base of our mindset is like communistic in terms of economy. So then he comes into markets. So after money is there, the concept of money has come. Now you have quantified things. The next set of this thing would be market would emerge. मतलब if you are exchanging something with strangers, a market is naturally to emerge. So let's 3000 years back, मतलब 3-4 साल back पीछे तक गोल्ड और वो established हो चुका था. Everyone was using coins और ये वो, मतलब everything was established कि अच्छा gold is like a currency that could be made. But
No one can, if you think about it, let's say there is a king in a country and cycling it. So if you own all the money, without the market that money means nothing. Yeah. So the whole this thing is ki, and gold and silver were owned by, all the mines were owned by rich people. So they are like, we can't do anything with gold mine, we can't do anything with gold and silver. We can only do something, we can only make money if we if we create a market and recycle the whole thing. So they made people believe that gold is okay, like a scarce thing. It is a good unit of account and a good medium of exchange as well, because it's smaller and it's like malleable and everything. So they started giving, these are the good uses of gold, and it is durable. It is the best currency. They convinced people it's the best currency. They started giving it currency out from the gold mines to the kings. Kings used that gold to pay their military guys. Military guys went home and used that gold to create markets, and because military people had the first, so अभी भी ऐसा होता है, banks get the first money. पहले ऐसा होता था military को मिलता था, only military was the one. अभी ऐसा होता है military has been replaced by banks. फिर बैंक के बाद बैंक और military दोनों को गवर्नमेंट देती है, मतलब गवर्नमेंट मनी प्रिंट होता है तो दोनों के पास जाता है. तो पहले सिर्फ मिलिट्री होता था, they always had to recycle money. कि अभी मतलब ओवरऑल उन्होंने बोला है कि कैपिटलिज्म is started itself on the basis of कि पूरी इकोनॉमी started on the basis of कि मिलिट्री अगर नहीं होती तो कोई इकोनॉमी नहीं होती. किंग्स भी, अगर किंग भी आ जाएगा बिना मिलिट्री के, वो पैसे कहाँ से जनरेट होंगे और कहाँ खर्च होंगे किसी को नहीं पता. विदाउट मिलिट्री यू कांट, मतलब कहीं एक प्राइमोर्डियल वो होना चाहिए कि यहाँ पे खर्च होंगे पैसे. मतलब वॉर में होता था तो वॉर के लिए उन्होंने मार्केट क्रिएट किया. तो दिस गाइस लाइक कि द इनिशियल दिस थिंग ऑफ मार्केट्स वाज वॉर, एंड विदाउट स्टेट also a market can't exist, because let's say otherwise, so state gives a promissory this thing. So you can redeem gold is also a thing that you'll give the state the gold and someone will give you something worth equal to money. What will you do with gold? If you are stuck, not if you are hungry, if you don't have money, then no one has grain, you can't do anything with gold. So gold is also a promissory thing. Ki someone, you believe that someone will give you something worth of gold, and that belief is basically implemented or enforced by the state. So if that promise of someone giving you the equal worth, this thing when you do an exchange, is established by state. So they were like, only after state came in, only after a godly figure like a king said ki, okay, I will make sure that you get your gold's worth and you don't die, but you will get grains worth of it, whatever you get. So until that day I promise, I also wouldn't trust you with like gold, a stranger with gold. Like I wouldn't know that whether you'll honor it or not later, the contract. So if there is no enforcer, this guy is like, there would be no market. So we say that markets always existed and state came later. So this guy is like, no, markets and state always go together. State is the creator of the market as well as enforcer of the market. If there was no state, there would be no market. So it's just like जो अभी fiat money में भी होता है कि हम उसको लिखा होता है, मैं धारक को वादा करता हूँ कि this you'll get 100 rupees worth. if there is no one to enforce that, there would be many markets. There would be smaller markets, but there would be. But so there's no possibility that there was a Till now, market. there is no. We haven't been able to detach the existence of state from the existence of market, because states have been there from like I don't know how long, and since. So all the money, all the coinage and everything came around like 3,000 years back, 4,000 years back, and since when we have always, state has existed for us before money as well. Like for our understanding, states have always been there alongside money. But who will print the coin? Who will basically print the money if like not state? And even if a random person, if there is no state, someone prints the money, how will other people acknowledge it? Like there is no. अगर बीच का वो है ही नहीं state, तो there is no one to trust it. When you say state, it's just one. No, state could body. be a religion as well. मतलब state is any body that like institution. There Yeah. used to be बीच Christian में- coins and Muslim coins also. बीच में any institution that sits in the middle, and it's like, okay, I will make sure that everything runs smoothly. So in China, most of the time, so China, for example, has always in the whole history has been the most prosperous country ever. Like they have always had faith in the state. Till now, they also, we say, okay, there is no free speech, but most of the people in China are okay by giving some liberties to the state for having like a better, more efficient economy. So China had always had this bureaucratic setup. Like उनका मतलब starting से ऐसा था कि bureaucracy होती थी और बहुत ज़्यादा efficient bureaucracy थी, and they always had this मतलब जो promissory, जो note का concept जो यहाँ पे west में बहुत ही late आया, वो note
2000 साल पहले से चल रहे चाइना में, मतलब कोई वो गोल्ड भी बहुत बार नहीं यूज करते थे, दे ऑलवेज हैड दिस डेट नोट्स जो साइन करके दे देते थे, और बिकॉज यू नो मतलब अब गवर्नमेंट अगर इंश्योर कर रही है कि हम पैसे दिलाएंगे, तो अगर उसके गोल्ड से बैक हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब अगर इफ आई एम मेकिंग श्योर कि 1 रुपए तुम्हें मिलेगा, तो 1 रुपए अगर तुम गोल्ड लेके आओगे या एक वर्थलेस पेपर लेके आओगे, अगर मैं को मेक श्योर कर रहा हूँ, तो गोल्ड और वर्थलेस पेपर में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब वो चीज है। तो जो पीपल से फिएट करेंसी इज अ बैड थिंग, अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट बैड, मतलब करेंसी डजंट हैव टू बी बैक्ड बाय एनीथिंग, मतलब अगर तुमने ज्यादा प्रिंट कर दिया तो तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो या तो प्री वाला वो ले रहे हो, तो मतलब प्री कंसीडर कर रहे हो, या एक फीडबैक लूप ले रहे हो रादर, मतलब फीडबैक लूप में इसलिए वो लोग बोलते हैं क्योंकि पॉलिटिशियंस थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं, वो फीडबैक लूप कितना ज्यादा बुरा होगा वो किसी को नहीं पता होता है, मतलब तो कॉशनरी मेजर के लिए लोग बोलते हैं कुछ कुछ, अभी कॉशनरी तो कुछ बचे ही नहीं, लोग ऐसे अंदर प्रिंट कर रहे हैं, बट दे नो कि अगर इन्फ्लेशन 1 साल भी बढ़ गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो दे नो कि वो जो फीडबैक है वो अच्छा आ रहा है, तो नो वन वुड लाइक do it in a way unless it's a dictatorship and no one can do anything, तो मतलब ऐसी कंट्रीज में ही पूरी इकोनॉमी खराब होती है जहाँ पे, तो फिएट करेंसी इज नॉट अ बैड थिंग, मतलब वैसा है कि मतलब गोल्ड भी एक तरह से अमीर लोगों ने वो कॉन्सेप्ट बनाया था कि गोल्ड तो कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि गोल्ड में एक्स्ट्रा कुछ होता है। Yeah, I mean, पहले तो currency was just backed by gold, right? They just built it so that किसी भी चीज को अगर कोई इंश्योर कि ज्यादा ना क्रिएट कर दे लोग, मतलब बस वही वो ये है कि लिमिटेड उसमें होता है। नहीं अभी भी no, it's no longer backed by like US currency. हाँ there's no longer, so fiat Yeah. currencies are पेट्रोल नहीं कुछ भी नहीं So what is there any currency कोई backed by commodity नहीं है, कोई commodity नहीं है। अपने मन से print कर सकते rupees? Is also not. Not इंडिया bad, Yeah. इंडिया में लेकिन गोल्ड से कुछ backed 2-4% कुछ तो होता है। है, 1-2%। वो हाँ परसेंटेज होता है, 10 बहुत ही कम, पहले 10 10 होता था, कुछ भी बहुत पहले कम। 10 होता था। कोई वो ऐसे नाम के लिए अभी अरे- तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो कितनी इनटू x मनी में, I mean वो पहले हुआ था because countries wanted a way. दैट वाज अ लेगेसी सिस्टम, Yeah. किसी को कोई रीजनिंग नहीं थी किसी के पास, कोई बस उनका ये था कि एक चेक हो जाता है, कॉशनरी चेक है rather than कितना मतलब economical पोस्ट है। फीडबैक, मतलब ऐसा चीज, पर उन्होंने कहा अब तो कॉशनरी भी तुम लगा लो तो भी तुम्हारा वो होता है, ये बबल्स बनते हैं कैपिटलिज्म में, तो इवन अगर बबल बन ही रहा है तो ठीक है, मतलब अभी जो नेक्स्ट हो सकता है बबल बनेगी, फिएट करेंसी 1982-80 से चालू हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हो सकता है जो क्रेडिट बबल वो बहुत ही बड़ा हो, बट नो वन नोस टिल नाउ कि उसका अभी क्या इफेक्ट 200 ट्रिलियन का है। क्या इफेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड की की इकोनॉमी की वैल्यू है 60 ट्रिलियन एंड डेट लोगों के ऊपर, क्रेडिट जो लोगों ने ले रखा है वो है 200 ट्रिलियन का। वो ऐसा नहीं फ्यूचर में पे करेगा जो हाँ। करेगा, हमें तो बस लेना है, वैल्यू और भी पे बढ़ता करना जाता है। है, फ्यूचर में वैल्यू बढ़ता जाता है डेट का। मतलब यूएस ऐसे करता है, यूएस वुड गो टू 2 कंट्रीज एंड से कि अच्छा मुझे लाओ 1-1 बिलियन लाओ, तो कहेगा वो बोलेगा कि मुझे 1 बिलियन चाहिए, ये अपने पैसे दूसरी कंट्री का डेट होगा तो ये अपने पैसे इसको दे देगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो ये बोलेगा 1 बिलियन तो इसके पास तो 2 लेने आया था एक, वो कहेगा इससे तुम इसको फिर से 5 बिलियन का लोन दो, और फिर इससे इसको लोन दिलवाएगा और फिर ले लेगा पैसे इसके सारे मतलब वो यूएस ऐसा होता है कि एवरीथिंग ऑल द डेट्स आर इन्फोर्स्ड बाय यूएस, मतलब अभी तो पूरी चाइना भी यूएस पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब चाइना अगर यूएस फेल हो जाएगा तो चाइना फेल हो जाएगा, चाइना होल्ड्स यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, मतलब अलग लेवल पे उनका हो रहा है, 1.3 ट्रिलियन। तो चाइना का हमेशा से था दे बिलीव इन अ थिंग ऑफ लाइक कि हम होमेज देते हैं हर महीने, मतलब ऐसा है कि हम एक हफ्ता दे रहे हैं एक तरह से यूएस को, तो वो मान के चल लेते हैं कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे तो वील कीप ऑन सपोर्टिंग यू एज वेल, और तुम हमें सपोर्ट करो मतलब हफ्ता ही दे रहे हो This is the first 500 years, you said 5,000 years. this is the book is first 5,000 years, क्योंकि अभी 5,000 साल ही हुए, Yeah, मतलब yeah. 3,000 साल 5,000 So साल पहले no, start book हुआ। is saying that the debt is 5,000 years That is old. 5,000. So now he's like कि quantify कब होगा, मतलब debt, you are born, you are in debt to the society, so first you are in debt to your parents, then you are in debt to your society, then you are debt to your region, फिर उसके बाद मतलब सारा debt होता है, religion में भी debt होता है कि अच्छा ये है वो, तो कब ऐसा होता है कि डेट, पर ऐसे डेट नहीं होते कि तुम्हें पे करने ही करने हैं, मतलब ये डेट होते हैं जो क्वांटिफाई नहीं होते, कभी भी तुम्हें पता होता है यू आर इंडेटेड बट यू डोंट गेज द वैल्यू ऑफ इट, मतलब हर जगह हिस्ट्री में लिखा गया है like there is no value of mother's milk, there is no value of like mother's care or something like that, you can't quantify it, so there were situations, so people thought, मतलब people took life also as a debt to death, मतलब कि ये हमें डेट में मिली है लाइफ and we will have to pay back by dying in the end, तो मतलब settlement, तो the whole context was कि there is
नो वे टू क्वांटिफाई इट, मतलब हमेशा डेट है, एवरीवन एग्जिस्ट इन डेट ऑफ समवन, कि पेरेंट्स का है, तो ऐसी क्या सिचुएशन आएगी जब हम क्वांटिफाई करेंगे? क्वांटिफिकेशन अभी नहीं है, हमें पता है डेट है, हमें पता है कि अनपेएबल है, बट वी डोंट नो हाउ मच इट इज वर्थ. सो देन दिस गाय स्टार्टेड कि पहली बार कब क्वांटिफाई हुआ था डेट, मतलब पहला ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि अब तुम्हें लगेगा कि नहीं, अब मुझे ये स्पेसिफिक जानना है कि ये कितने की, इसकी क्या वैल्यू है, और उस वैल्यू को गेज करके किसी और चीज के टर्म्स में वो यूनिट ऑफ अकाउंट बना के मुझे वो चाहिए पैसे. ऐसा क्या होगा? He thinks about the first thing that led to this was dispute. मतलब money wasn't created to have a value of something, money was created to, मतलब किसी ने, मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया किसी की फैमिली में, अब तुम्हारी फैमिली आके मेरी फैमिली को मर्डर कर देगी. पहले ये लोग करते हैं कि मैं इधर मर्डर हो रहे हैं, कुछ लोग आए बीच में, उन्होंने रोका कि नहीं रुक जाओ, ये थोड़ा सेटल कर लेते हैं, मतलब डिस्प्यूट सेटल कर लेते हैं. तुम्हारी घर पे लड़ाई हुई, पेरेंट्स ने बोल दिया हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुम कहो कि अच्छा ये लो 2 लाख रुपए वहां पे. तो the only the quantification this guy is like, the basic quantification happens when there is a dispute. I like to add, सेपियंस में हमने सीखा था हनुराबी कोड था. हनुराबी कोड एग्जैक्टली यही था, लाइफ को एक्चुअली वैल्यू देगी थी कि तुम अगर लेट्स से अपर पार्ट में हो या फिर तुम लोअर पार्ट में हो. इफ किसी अपर पार्ट वाले ने लोअर पार्ट को मार दिया हाँ, तो उसी हिसाब से कॉइन दे देगा, पर अगर लोअर पार्ट ने अपर पार्ट को मार दिया तो उसकी फैमिली के लोगों को मार दिया जाएगा. ऐसी भी सिचुएशन थी कि तुम्हारे जनरेशन तक तुम्हें उनके यहाँ स्लेवरी करनी पड़ेगी. स्लेव्स का भी कॉन्सेप्ट था कि मतलब स्लेव्स, दिस गाय इज लाइक स्लेवरी इज जस्ट हैविंग अ ह्यूमन आउट ऑफ हिज कॉन्टेक्स्ट. तो अगर एक ह्यूमन को उठा के तुमने अफ्रीका से यहाँ लाया है, वो ह्यूमन थोड़ा अलग दिखता है, तुम्हें नहीं पता उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके घर पे होगा कोई कि नहीं होगा, उसका इमोशनल कैसे काम करता है, तो जैसे डिह्यूमनाइज कर दिया तुमने, तब क्वांटिफाई कर पाओगे. तो द होल थिंग वाज कि ये भी क्वांटिटी नहीं, मतलब ये भी क्वांटिफिकेशन नहीं हो रहा है. इट्स नॉट लाइक मैंने तुम्हें अगर पैसे दे दिए तो मर्डर मेरा वो हो गया. ये बस मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ठीक है, मतलब मुझे पता है कि मैं ये कभी नहीं रीपे कर सकता हूँ, बट दिस इज अ जेस्चर, मतलब वो जेस्चर होता है, वो क्वांटिटी वो भी नहीं होगा. मतलब ये द कॉन्सेप्ट वाज कि नो रियल ह्यूमन कुड बी क्वांटिफाइड इन मनी. मतलब ये स्टार्टिंग में था हमेशा से कि नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसको मर्डर कर दोगे तुम इतने पैसे दे दो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं था कभी भी. अनलेस दोस आर स्लेव्स में ऐसा था, क्योंकि उनको डिह्यूमनाइज कर देते थे, उनको बोलते ही नहीं थे ये ह्यूमन है, उनको हमेशा अदर वो होता था कि ये तो अलग ही दिख रहे हैं, तो अलग है, तो उनको उनकी वैल्यू डिसाइड कर पाते थे. तो हमेशा ऑलवेज द आर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो अभी भी आज के कैपिटलिज्म में भी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज डिफाइंड बाय हाउ वी यूज्ड टू ओन स्लेव्स. क्योंकि लोग लैंड नहीं कोई यूज करता था पहले, किसी को फर्क नहीं पड़ता था. ऐसी कंट्री से इंडिया में चलो तब भी लैंड के लिए होगा क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं अच्छे, बट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस कम लोग, बहुत कम लोग हैं और एरिया बहुत ज्यादा है, तो नो वन गिव्स अ फक अबाउट लैंड. वहां पे पीपल केयर अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज कितना है, मतलब स्लेव्स कितना है, ह्यूमन रिसोर्सेज. तो देयर लाइक कि वो सबसे पहले केयर करोगी ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हर जगह लोग कम थे पहले. तो व्हेन यू केयर अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, योर प्रॉपर्टी बिकम्स ह्यूमंस रादर देन लैंड. एंड आवर कोड्स, जो हमारी साइकोलॉजी है ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफ हाउ वी ओन थिंग्स, directly comes from how we have owned slaves in the past. मतलब हमें उसने पूरा बताया कि पूरा रोमन जो वो था लिटरेचर था जिसपे हमारे प्रॉपर्टी राइट्स बेस्ड है अभी भी लैंड के, और सबके सब सारे प्रॉपर्टी राइट्स, वो सारे प्रॉपर्टी राइट्स अप्लाई होते थे स्लेव्स पे. मतलब कि वो जैसे स्लेव पास होते थे फैमिली पे, जैसे स्लेव के लिए वो करना पड़ता था, तुम्हें कभी टैक्स वैक्स पे करना पड़ता था, वैसे अपने घर भर के लिए करना पड़ता है गवर्नमेंट को. मतलब तो कहाँ से आते हैं वो सारी चीजें. तो when property started coming about in society, was it कि like तुम इतने slaves दो and then that's how you get that land? But then by then the money was there, so people were buying and selling slaves. Okay. They just so he is like कि first the concept of property कि अब land है, land is also another kind of property. तो मेरा पहला type of property slaves, उसके basis पे I projected my property definitions to land. मतलब ऐसा. Yeah, I got that. मैं बस पूछ रहा था कि like there was never like by the time property came there was already money. Property came a lot later. मतलब property का in no society like there would be before. एम्पायर्स में तो होंगे. नहीं, so the societies where there were more number of people, like Yeah. cities always had property issues. मतलब cities will always, जब तक स्पेस है तब तक. पर सिटी में ऐसा भी होता है, सिटी में जगह भी कम है और लोग
भी ज्यादा है, मतलब लोग भी एक तरह से कम ज्यादा, मतलब सिटी में तो काम भी ज्यादा होता है लोगों के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्सेज और वहाँ पे प्रॉपर्टी दोनों जरूरत होती है। पहले वर्टिकल वो नहीं आता था ना स्केलिंग घरों का, तो लैंड लीज हो यार गया। प्रॉपर्टी की बात करो यार बहुत प्रॉपर्टी The debt I am talking about कि मतलब डेट ऐसा डेट होता था पहले जो लोगों को होता था कि हम नहीं पे कर सकते, मतलब वो जैसे हमें कभी जमींदार होते थे, जमींदार ने किस डेट दे दिया, अब लोग होते थे जिंदगी भर मुझे तुम्हारे घर पे ही काम करना है, वो कभी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि किसी दिन मैं पे करके अपनी दुनिया वो कर लूंगा, मतलब चेंज कर लूंगा। यू वुड हैव सीन मतलब ऑन योर ग्रैंडफादर्स हाउस होल्ड लोग हैं डेडिकेटली, वो एक तरह से डेड ही है उनका, मतलब वो काम करते हैं वहां पे बिना कम पैसों पे और ये वो, क्योंकि उनका फैमिली पूरी काम करती आ रही है घर पे, मतलब ऐसा जनरली होता है। एंड दे डोंट इवन थिंक कि ये कभी मैं डेट पे कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब वो कभी क्वांटिफाई हुआ ही नहीं वो चीज, मतलब उन्होंने कहा कि तुम हमारी फैमिली के लिए करते थे, मतलब तुम हमने हमें उसको उस सिचुएशन से निकाला, तो वी आर इंडेटेड टू यू एंड we can't think ever about paying you back. So the non-quantifiable debts are the debts that people think that they can never pay back, and those are the debts, मतलब ऐसा होता है कि those are the biggest debts, मतलब जो most ancient होते हैं कि death, life death वाला debt, parents वाला debt, society वाला debt, which you can't think about paying back. Yeah. Um, does he get to talk? I mean, does he get to modern day and like how debt is in current day? Yeah, so I'll also go to, let's say, so मतलब human interactions also change a lot. कि I'll give you an example of how would someone behave. Let's say an intern goes for a dinner with Abhiraj, and let's say Kanav or Raghav go for a dinner with Abhiraj. How would the dynamics change? Who will think about paying, and how will someone think about कि जिसने पे किया था उसका डेट कैसे होगा? मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मतलब इंटर्न अगर गया है और अभिराज ने बोल दिया कि चलो स्प्लिट कर लेते हैं, इंटर्न सोचेगा ये कैसे थे आप ये कैसे, पर अगर तो हमेशा हम लोग सोचते हैं मतलब जिसका स्टेटस हाई होता है, अगर वो इक्वल दो तरीके से, वो तुम्हें डिनर पे ले जाके इक्वल हुआ, बट अगर उसने बोल दिया कि अब इक्वल पैसे भी पे कर देते तो तुम बोलोगे ये तो क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो ड्यूटी है, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं, तुम्हें पे करना चाहिए। और अगर दूसरे वाला बंदा उसके बराबर का है और फिर अगर उसने पे कर दिया तो दूसरा वाला बंदा हर बार फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम जरूर पे करेगा, मतलब तो वहां पे वन अप वाला गेम चल रहा है जहां पे इक्वल स्टेटस है, और जहां पे स्टेटस में डिफरेंस है वहां पे ऐसा है कि गरीब लोग बोलेगा मैं क्यों पे करूंगा भाई, तुम्हें मतलब वैसा है कि यहाँ तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। सो वी ऑलवेज जैसा है। हाँ, तो this project this to the feudal lords or someone like that, project this to the zamindars कि मैं ऐसा गरीब हूँ, मैं गया हूँ तुम्हारे यहाँ खाना खाया तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मतलब मैं उसको पे करूंगा, मतलब ऐसा है कि तुम कुछ कर रहे हो मेरे लिए और मुझे पता है अगली बार मैं तुम्हें डिनर पे नहीं ले जाऊंगा, तुमने फीस्ट कराया मुझे, मैं तुम्हें डिनर पे नहीं ले जाऊंगा, पर मैं अगर ऑफिस में बैठा हूँ तुम्हारा कोई काम है वो मैं वो कर दूंगा। दूसरा बंदे के लिए कहता तुमने मुझे डिनर कराया तो मैं भी तुम्हें डिनर कराऊंगा, मैं तुम्हें इक्वल वो करूंगा, तो दोनों में अलग अलग डेट हो गए। अगर स्टेटस बराबर है तो डेट हम क्वांटिटी का ज्यादा ध्यान रखते हैं कि थोड़ा इक्वल रखना है, थोड़ा वन अप हमें ज्यादा ही करना है वैसी चीज। जब वो नहीं है, स्टेटस अलग अलग है, तब तुम सोचते हो कि नहीं चलो मैं कर दूंगा, पर थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब अगर मुझे कभी मौका मिला, हो सकता है कभी डिनर आए ना, कभी अभिराज से मिलूं ही ना मैं कभी जिंदगी में, ऐसा मैं सोच के तो घूमूंगा नहीं कि अच्छा ठीक है ये मुझे करना है किसी तरह ये वो, तो इन दैट सिचुएशन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। इसमें तो अगर अभिराज ने किसी को बोला है डिनर के लिए तो अगले हफ्ते वो बंदा याद रखेगा और पूछ लेगा इसको वापस, क्योंकि अब मुझे पे बैक करना है, क्योंकि मुझे याद है कि इक्वल वो था, तो इसलिए वो क्वांटिफाइबल नहीं है जो स्टेटस गैप वाला है, हाँ, क्योंकि बंदे को पता है वो मैं पे कर नहीं सकता 10,000 रुपए, बट आई विल डू समथिंग। सर मैं फोटोकॉपी मैं लाता है। जब डिफरेंस हो जाता है स्टेटस में तो क्वांटिफाई करना और मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा एन एक्सचेंज इज अबाउट दिस थिंग, एन एक्सचेंज बिटवीन इक्वल पीपल, मतलब जब तुम किसी दुकान पे जाते हो तो तुम एक इक्वल हो शॉपकीपर के, चाहे तुम्हारे पास हजारों रुपए दुकान वाला भगा सकता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, वो तुम जब इक्वल हो गए तब तक उसके पहले तो जो उनमें हो रहा है अभिराज और कर्नल में हो रहा है, दैट इज मोर ऑफ एन एक्सचेंज देन अभिराज और इंटर्न में जो हो रहा है। मतलब तो पहले हायरार्की, मतलब अगर तुम हायरार्की रखोगे कि क्लास है सोसाइटीज में, तो ऊपर वाले हेल्प कर रहे हैं नीचे वालों को, नीचे वाले अपने आपस में भी कम्युनिस्टिक है और ऊपर वाले अपने आपस में कम्युनिस्टिक है, मतलब ऐसे चल रहा है। अगर इंटर्न को ले जा रहा तो वो भी यही करेगा कि अगली बार मतलब वो इंटर्न वर्सेस और स्प्लिट भी नहीं करेगा, वो वन अप भी हो सकता है। मतलब स्प्लिट तो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत नया लगता है, मतलब स्प्लिट तो अजीब सा लगता है, कभी भी अगर तुम जाओगे फिर दोस्तों के साथ स्प्लिट करवाओगे तो बहुत अजीब सा होता है, मतलब वो तो स्प्लिट वाइज हो गया तो चलो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग हो जाती है बट पहले तो अजीब होता था कि मतलब कैसे स्प्लिट कैसे करते हैं।
बट ये काफी नॉर्मल है, मतलब बस इंडिया में ये नॉर्मल की तरह रहते हैं, बट नहीं तो बाहर पहले तो वहां तो ऑलरेडी इंडिविजुअलिस्टिक वो पहुंच चुके हैं ना, वहां तो ऑलरेडी कैपिटलिज्म का अलग वो चल चुका है, वहां तो कंज्यूमरिज्म इतना घुस चुका है कि वो पुराने वाले वो कम्युनिस्टिक वाला वो चला गया, मतलब वो है कि वहां पे फ्रेंडशिप का लेवल मतलब स्ट्रेंजर ज्यादा है, मतलब वो तो जितने लेवल पे स्ट्रेंजर होगा, जितना तुम नहीं जानते होगे लोगों को, उतना ज्यादा तुम स्प्लिट करोगे, मतलब वो चीज। Yeah, अमेरिका में तो like my roommates, I give story मेरा like मेरे घर पे तो मतलब कुछ भी मतलब ऐसा होता है कि कोई settle सब कर कुछ दो। चल रहा है, तो that good of a- मेरे जो फ्लोर पे जो लोग थे, I become friends with them for like 6-7 months, and then मैंने एक बार किसी का चिप्स का पैकेट खा लिया दूसरे कुछ, and he was like, how can you eat it without asking? He's like, I would have let you eat it as long as you asked. ये बहुत होता है वहाँ पर, ये ये तो नहीं होता है यहाँ पे तो यहाँ पड़ा रहता है, हाथ डालते हैं। पता है मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ होता है तो कंपनी क्रम्बल तो करता है। ये बिगेस्ट चीज था, मैंने कहा कि like अगर मुझे if I have to ask you I will never take it, because like my whole thing is कि like I assume it's like if it's yours then like I can have something within reason, right? Like but बहुत मुश्किल होता था। Like, मुझे तो आदत ही है कि like So you are happy now. Bye. Imagine करो, there is a guy we all know who roams around. Wait. But we did this- Company क्रम्बल करता है। but then one of my roommates joined my like Indian group, so he became like us. Convert करा दिया। So the this thing, the change was in a way कि पहले let's say the first thing that I think about what is a debt, I would think about कि okay, I have got this life, someone gave me a debt by giving me this life, and I will have to do something in my life and then repay the debt by dying in the end. So after I come into the world, I'll think okay, there is a God who created us, we will pay interest by doing animal sacrifice or something like that throughout our life. So we are paying interest throughout our life by animal sacrifices, and then we are dying and then closing the loan. तो मतलब ऐसा है कि बीच में इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो और फिर प्रिंसिपल तब खत्म हो रहा है जब मर रहे हो। देन आफ्टर दैट एक और टैक्स आ गया कि अब चलो स्टेट आ गया है, तो गवर्नमेंट इज आल्सो लाइक अ सेमी गॉड। तो वैसा है कि अब उनको कैसे हम पैसिफाई कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट हम दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो पहले उससे गॉड पहले खुद को वो करते हैं, खुद को मतलब खुद की उस पे, फिर गॉड को वो करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टेट को हम वो करते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी भी आ गई, फिर उसके बाद सबको आ गया कि अब सबको तुम वो करते हो, तो पैदा हुआ ही मतलब बहुत ज्यादा डेट में, और तुम्हें बस इंटरेस्ट पे करना लाइफ भर और फिर मर जाना है, तो वैसा होता है। You can't ever, so the concept of squaring accounts is like very weird. It never happened. So पहले भी ऐसा होता था, debt wasn't ever repaid. मतलब repayment of debt का concept भूल जाओ। So this guy is like, जब हम बोलते हैं किसान का debt माफ हो गया है, debt माफ हजारों सालों से हो रहा है। किंग्स आते थे, बोल देते थे कि नहीं, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल तुम कलेक्ट कर चुके हो अपना, अगर 2x का प्रिंसिपल कलेक्ट कर चुके हो, तुम्हारा वो खत्म हो गया लोन, तुम चूतिया नहीं बना सकते, you can't be greedy. So the whole concept of debt माफ करना is a very intrinsic concept to a debt economy. मतलब debt माफ करना ही होता है, नहीं तो जो debt दे रहे होते हैं they become very powerful. मतलब क्योंकि अब कोई बंदा नहीं पे कर पा रहा है debt, you are in control of the society. मतलब जो debt दे रहे हैं, जो डेट ले रहा है वो अगर बंदा नहीं पे कर पा रहा है, तो किसकी गलती, मतलब जनरली गलती ऊपर वालों की होती है, और डेट माफ करने पे ऐसा नहीं होता कि इनको लॉस होता है। ये अपना ऑलरेडी, जब अगर वो नहीं पे कर पा रहा, वो दूसरा डेट नहीं लेगा, जब तक वो दूसरा डेट नहीं लेगा तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। तो अगर तुम ये इन्फोर्स कर रहे हो कि तुम्हें पे करना ही करना है, तो तुम्हारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। मतलब तो हमेशा ऐसा होता था कि डेट माफ करना इज फाइन, मतलब ऐसा कुछ नहीं जा रहा है किसी के, जब बेस लेवल पे उसको देखोगे इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो मेरे माय पर्सपेक्टिव चेंज इन दैट वे कि आई यूज्ड टू थिंक फेयर करेंसी शिट, बट इसने बंदे ने बताया कि कोई है ही नहीं, गोल्ड क्या है, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं किसी चीज की। सेकंड वाज कि डेट माफ करना इज अ बैड थिंग, मतलब वो भी इसने पूरे अच्छे से ही टॉक्ड अबाउट कि नो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये हमारा मिसकंसेप्शन ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है कि डेट्स माफ हुए हैं, एंड देयर इज नो, मतलब देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट कि उससे कुछ इकोनॉमी क्रम्बल हो गई या कुछ भी हो गया, बल्कि और जो ऑप्रेस्ड सेक्शंस होते थे उनके लिए दे यूज्ड टू बी एट अ वेरी गुड एडवांटेज आफ्टर दिस वाज डन। तो मतलब बट उसको वो लोग अपोजिट वे में नहीं लेते हैं कि पे ही नहीं करेंगे। हाँ, पे मतलब दे अज्यूम कि वो पे ही नहीं करेंगे। That's what your duty is to pay interest payment. मतलब तुम्हारा डेट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पे नहीं करोगे, इंटरेस्ट नहीं दोगे तो मैं आके मार लूंगा तुम्हारे, बट मैं ये नहीं करूंगा कि अगर तुम नहीं पे कर पा रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तो लोगों को खुद ऐसे ड्यूटी लगता है
कि वो इंटरेस्ट पेमेंट देते रहे। जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि तुम्हारे घर दादाजी के घर पे कोई बंदा काम कर रहा है, वो तुम्हारा कभी डेट रीपे नहीं कर रहा है, वो तुम्हें इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा है धीरे-धीरे काम की। उससे अगर तुम बोलोगे नहीं आज क्या तुम अपना घर बेच के मुझे पैसे ला के दो क्योंकि मैंने इतनी हेल्प की है तुम्हारी, दैट इज व्हाट यू शुड डू। मतलब तुम क्या मतलब बहुत दादाजी के घर में कि if there is some guy who is like loyal to, so you have work home helps, right? So he is giving you interest by working there. He is not repaying your debt payment. He is not repaying the principal. He is not squaring off the debt. There won't be ever in his life where he is like अच्छा आज मैंने पे कर दिया सब कुछ जो तुमने जो मैं तुमको वो करता था। मतलब it's always whatever we pay back is generally the interest. Living there without getting paid. He's just मतलब उसको छत मिली है इसलिए वो काम कर रहा है. And he's paying the interest for it. So he's like जो हम पे बैक करते हैं always in the whole history people never paid back कि अच्छा आज 5 लाख का लोन लिए कल मैंने तुम्हें 1 महीने बाद तुम्हें 6 लाख रुपए दे दी। मतलब they always paid interest। एक टाइम के बाद जब तुमने अगर enough interest कलेक्ट कर लिया that debt should square off। मतलब ऐसा जो तो वो चीज लोगों का था कि मतलब इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट की जो मैंने उसमें बताया कि एनिमल सैक्रिफाइस इज आल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्ट, टैक्सेस आर आल्सो काइंड ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट जो तुम डेट गवर्नमेंट ने तुम्हें तुम बॉर्न होकर किया है जो तुम डेट में हो, यू आर ओनली पेइंग इंटरेस्ट। अगर कोई बोले कि मैं सिटीजनशिप छोड़ना है मुझे इस कंट्री की पर इसी में रहना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? तुम कितने पैसे दे दो गवर्नमेंट को बोलेंगे आज से चलो तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू कांट एंड योर टैक्स लायबिलिटी बाय सेइंग दैट कि मैं एक लमसम पे कर देता हूं तुम्हारा लोन जो तुम वो करते हो मैं तुम्हें डेट में, और उसके बाद ना मैं तुम्हारी सर्विसेज यूज करूंगा ना वो करूंगा। मतलब वो चीज रोड पे नहीं मैं उड़ेगा उबर। For example, we see a lot of communism in cigarettes. Have you ever refused giving cigarette to someone? No, yeah, that's the thing. तो वो होता ही है कि मतलब कभी तुम पैसे वैसे और कोई पैसे देने लगे सिगरेट के लिए तो बहुत ही weird लगेगा। मतलब I can't imagine कि कैसा लगेगा। मतलब कोई आज तक हुआ नहीं मेरे साथ। मैं तो लोगों को इतना नेचुरली हुआ है। That is very natural. That's what I think कि instinct क्या है और learned क्या है। मतलब कुछ चीजें learned होती हैं, कुछ चीजें instinct होती हैं। मतलब कुछ चीजें पता चल जाता है कि तुम्हें कि अगर तुम दूसरा कोई भी वे लोगे तो बहुत वियर्ड लगेगा। तो कल्चर पे भी डिपेंड करता है। मतलब हाँ नहीं बट आई एम जस्ट थिंकिंग इट्स नॉट वो हो चुका है मुझे लाइक किसी ने लाइक आई गिव अ सिगरेट उसने $1 मैंने नहीं चाहिए यार $1 तो रख ले यार सिगरेट क्वांटिफाई कर बिटकॉइन दे कितना $1 नहीं हाँ उसने $1 देता था because maybe in this case also subjectivity comes in कि if you have an ongoing relationship with someone मतलब कोई ऑफिस में है कोई ये है तो easier होता है stranger yeah so अगर कोई एकदम ही रैंडम स्ट्रेंज बंदा है तो हो सकता है कि अच्छा ठीक है तुम मना कर दो या तुम बोल दो कि अच्छा नहीं हाँ, तो एक ही सिगरेट बच्चा हुआ नहीं दे सकता मैं मतलब ऐसा हाँ मैं मर जाऊंगा कल्चरली हो ना वहाँ पर वाला वहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंजर है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में एंड देन द अदर पॉइंट इज कि लाइक वो उसको नीड है उसको एंड ही विल गिव द डॉलर क्योंकि उसको अभी बहुत लाइक सप्लाई लाइक जस्ट लाइक अभी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो पर्सनल रिलेशनशिप आल्सो लाइक अफेक्ट्स द होल थिंग। फॉर एग्जांपल अगर कोई शॉपकीपर है तो वो यूएस वाले को देखेगा तो ज्यादा पैसे लेगा, ठीक। ये इसलिए ज्यादा पैसे नहीं लेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं। इंडिया से भी अगर कोई अमीर आंटी आएंगी तो वो यूएस वालों से कम पैसे लेगा उनसे। तो ये अगर उनकी सिर्फ परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है तुम क्या चार्ज कर रहे हो उनको, तो तुम अमीर आंटी और यूएस वालों से सेम पैसे लोगे, बट वो नहीं लेता है। जितना ज्यादा फेमिलियरिटी और क्लोजर होता रहता है उतना तुम्हें डिस्काउंट देगा। तो एन एक्सचेंज इज नॉट द सेम एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स के हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन सेम है, चाहे कोई भी दोनों पार्टीज कोई भी हो सकती है, बट दोनों पार्टीज में जब फेमिलियरिटी बढ़ती है और घटती है तो उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो 100 रुपए का वो चीज बेच रहा था वो तुम्हें 80 कर जाएगा क्योंकि तुम्हें जानता है। तो रियल ट्रांजैक्शन वैल्यू कभी डिटरमाइन ही नहीं कर सकते तुम एज एन इकोनॉमिस्ट अनलेस तुम्हें वो रिलेशनशिप पता हो लोगों की। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है वहां पे। ऑटो का एग्जांपल ले लो, एज सिंपल एज दैट। किसी जगह नई जगह पे जाते हो, ऑटो लेते हो, सेम तुमसे 1200 लेगा, अंग्रेज आएगा उससे 2000 लेगा, लोकल पे लेगा भाई चल 200 रुपये लगते हैं। एंड एक्सचेंज इज अ वे टू कैंसिल द डेट। सो उसने तुम्हें दिया चीज, तुम डेट में आए 10 सेकंड के लिए, तुम हो सकता है घर चले जाओ कि अच्छा मैं बाद में कर लेंगे, अगली बार मैं कुछ दे दूंगा। तुम्हें करना है कि अच्छा ये तो मेरी ऑनगोइंग रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे अभी का अभी सेटल करना है, मुझे याद नहीं रखना कि मैं इस बंदे को क्या वो करता हूँ, तो रैंडम बंदा शॉपकीपर है कोई, तो तुम जाके पे कर देते हो, डेट तुम्हारा कैंसिल हो जाता है वहां पे और तुम आगे बढ़ जाते हो। मतलब तो स्ट्रेंजर्स या कॉन्फ्लिक्ट से तुम डेट कैंसिल करना चाहते हो, बाकी लोगों से तुम बिकॉज यू हैव एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप, यू नो सम, मतलब वो तुम्हारे ग्रुप का कुछ है, तो यू ऑलवेज यू नेवर कैंसिल या यू नेवर कॉल इट इवन। Or like a bar also, right? Like if you have a tab at a bar, it's the same thing. Like you'll have an ongoing relationship because you're like a regular. So
वहाँ पर like you'll have a tab. That's इंडिया में शायद बहुत इंडिया में नहीं होता ये. इंडिया में नहीं होता हाँ, और वहाँ पर भी नहीं होता. It happens I think mostly in small towns. हाँ मैं बोल रहा हूँ इंडिया में उस लेवल क्वांटिफिकेशन तक ही नहीं आते हैं मतलब हाँ. क्योंकि वो ही नहीं करते कि उन्हें याद रहेगा कि अच्छा ये हुआ था हम वो टू इट्स ओन कैपेसिटी टू इट्स ओन मतलब वो हो जाता है जितना मैं कर सकूंगा उतना करूंगा मुझे तो मतलब घर पे तो मैं बहुत देखता हूँ किसी के घर को खाना वाना बना दो इधर उधर होता रहता है कि आ जाता है सब लोग एक दूसरे को वो कर रहे हैं कुछ भी नया आया तो दे रहे हैं मतलब द होल सोसाइटी दैट वी सी लाइक वी हैव वेस्टर्नाइज्ड लॉट मतलब हमारा थोड़ा थॉट प्रोसेस पर घर पे तो जाके मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज्यादा कम्युनिस्टिक है मतलब एक्सचेंज तो कुछ है ही नहीं सिर्फ लोग कर रहे हैं एक दूसरे से और कोई ऐसा नहीं याद रखता मतलब लोगों को याद रहता है अच्छा ये 6 महीने पहले उन्होंने ये बनाया था ये लेके आए थे घर पे पर वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने बनाया था वो कुछ स्वीट डिश थी तो तुम्हें वही देना है कुछ अलग दूसरी स्वीट डिश देनी यू कैन गिव एनीथिंग एल्स तो क्वांटिफिकेशन नहीं है तो मतलब शादी जैसे है, शादी में गिफ्ट्स का सिस्टम है फॉर एग्जांपल इफ बिल गेट्स टेक्स मी आउट ऑन अ डिनर मैं कभी पे नहीं करूंगा मतलब वैसा है तो इसमें वैसा है कि कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हम हर उसमें मतलब इसमें अगर स्ट्रेंजर है तो हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं कि बिल गेट्स अगर है तो मुझे तो करना ही नहीं पे मतलब क्योंकि वो मेरे इसमें मुझे उससे कुछ एडवांटेज मिल ही नहीं सकता अगर मैं पे भी कर दूं तो बिल गेट्स अगर मैं पे भी कर दिया तो मुझे कोई एडवांटेज नहीं है दूसरे में इसमें मैं शॉर्ट टर्म देखता हूँ तो मुझे नहीं पे करना है शॉर्ट टर्म क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो कोई किसी बंदे को मैं जानता हूँ मेरे सेम स्टेटस का है तो उसमें होगा नहीं अब मुझे लॉन्ग टर्म देखना है क्योंकि ऑनगोइंग रिलेशनशिप है तो अब मैं भी पे करूंगा मतलब उस टाइम लगता है कि तुम डेट में हो बिल गेट्स के में तो लगे रहे नहीं तुम डेट में हो डेट क्या है उसके लिए वो 1000 रुपए क्या है उसके लिए तो ongoing फ्रेंड्स जैसे लाइक फ्रेंडशिप के साथ है फैमिली के साथ है तो in some relation and but relationships go sour over debt also right so like yeah so that's when dispute happens then you will think about अच्छा तुमने 6 महीने पहले ये किया था तुमने 1 साल पहले ये किया था अब लेट्स क्वांटिफाई तो ओनली when it goes sour और फिर उसके बाद क्वांटिफिकेशन होता है फिर और सार होता रहता है मतलब इट्स अ साइकिल की मतलब एक बार लड़ाई हुई फिर तुमने क्वांटिफाई करना चालू कर दिया कि अच्छा मैंने ये किया तुमने ये किया फिर एक बार उसने बोला मैंने ज्यादा किया है तुमने बोला तुमने ज्यादा किया है तुम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो और लड़ाई बढ़ती है जैसे रूममेट के साथ हो सकता है कि इफ यू हैव अ रूममेट दैट यू डोंट लाइक देन यू विल स्टार्ट मेजरिंग नहीं है उसने टॉयलेट पेपर नहीं लगाया एंड दैट्स ऑलवेज यू विल ऑलवेज मेजर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग मतलब हमेशा कुछ बुरा ही होगा ऐसा नहीं होगा कि अच्छे दोस्त हैं और वो एकदम वो करके चल रहे हैं कि नहीं अच्छा तुमने ये किया था मैंने ये किया था वो दैट इज नेवर but it must be very different communities right like maybe like what is there a community that is more similar to India is it just like China right but and nothing except China so जैसे they are similar but base level पे they will also feel the same मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस में people are more cities में let's say people are more stranger मतलब लोगों को फील होता है तो जितनी छोटी कम्युनिटी होगी जितनी क्लोज कम्युनिटी यूएस में भी छोटी कम्युनिटीज would be common obviously yeah तो it's also about मतलब ऐसा नहीं है कि यूएस पूरा ऐसा है इंडिया ऐसा है पूरा इंडिया में हमेशा ज्यादा लोग थे ज्यादा क्लोज छोटी-छोटी विलेजेस थे छोटी-छोटी कम्युनिटीज थी तो बहुत ज्यादा कोहेसिव था वहां पे and then you have extreme cases जहां पर people who are in that system and they move to like a communist like commune like what happened in Auroville or what happened in this with Osho and shit तो वहाँ पर तो that's a different वहाँ पे वो फिर जब वो कराते हैं मतलब वहाँ पे भी लोग रह रहे हैं स्ट्रेंजर्स की तरह क्योंकि बार्टर चला रहे हैं वहाँ पे मतलब बहुत तो एक तरह से वो कम्युनिटी है बट that is there is a difference between that community and a smaller मतलब और भी बड़ी कम्युनिटी आती 5000 लोग पहले बहुत ज्यादा होते थे पहले के उसमें तो वो 5000 लोगों में तुम्हें बार्टर रखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेंजर हैं अगर तुम स्ट्रेंजर हो और तुमने मनी इन्वेस्ट नहीं किया तब तो बार्टर ही करना पड़ेगा तुम्हें मतलब तो स्ट्रेंजर्स के बीच में मनी एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बट अगर वो but with time that will get removed right like पहले मतलब ऐसा लोग तो बढ़ते जाएंगे हाँ लोग बढ़ते जाएंगे that's different like अरे हमारे वहाँ co-op system होता था तो basically like if you make models if you make rules और कि अच्छा ये होता है तो then it will but then people are not acting on their own about then you have come as an enforcer of rules rule कौन enforce so you're this little state बना दिया basically yeah I mean I don't think you can falsely create that right तो वही issue आता है और वो भी है मतलब एक तरह से एक और बहुत ही सही साइकोलॉजी होती है इसमें कि हाउ वी रेसिप्रोकेट टू थिंग्स दैट अदर्स डू मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम अगर मुझे वन अप करते जाओगे तो मैं भी तुम्हें वन अप करते जाऊंगा बहुत सारे सिनेरियोज में
जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो ओवरली जनरस है, मतलब उसने जाकर तुम्हें एक बार डिनर करा दिया है, तुमने सोचा चलो मुझे अभी पे करना है उसको, बाद में आई हैव टू पे हिम बैक और बाद में आई हैव टू डू समथिंग फॉर हिम। उसने अगर दूसरी बार भी जाके डिनर करा दिया, अभी तक तुम्हारी बारी नहीं आई, तुमने उसने ऐसे वो कराता क्या कराता, मतलब ऐसा वो दो चार बार हो गया तो तुम ये अज्यूम कर लो कि बंदा ही ऐसा है, उसके बाद तुम बेशर्म हो जाओगे। उसके बाद तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि मैं डेट में हूँ, तुम जब अगली बार जब उस बंदे के जाओगे वो तुम्हें लगेगा वही पे करेगा, मतलब ऐसा हो सेम कंस्ट्रक्ट हेल्पिंग में भी होता है कि अगर आपकी दो बार किसी का हाँ मतलब ये तो बंदा कर देता है चलो कि यही है Self, हाँ, मतलब मतलब ये भी कर सकते हैं। तो यू शुडंट, मतलब ऐसा होता है कि मतलब यू शुडंट वंस यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर पीपल, इट्स लाइक दे विल कंसीडर कि अच्छा तुम ऐसे ही हो और तुम कुछ एक्स्ट्रा अपने आगे जाके वैसे नहीं कर रहे हो, मतलब अलग से कोई तुम एफर्ट नहीं ले रहे हो करने में, वो एफर्टलेस है, तो वो ऑलरेडी अज्यूम कर लेता है तुम्हारा माइंड कि मुझे रेसिप्रोकेट करने ही नहीं है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ जनरस होना ही जानता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये ज्यादा जनरस हो गया, मैं नहीं करूंगा तो कम जनरस होगा, तो वो एल्गोरिथम वैसे ही सेट हो जाता है। जैसे एक ऐसे हमने खुद ही वो बना दिया ना, जो तुम गैप की बात कर रहे थे इंटर्न सीए वाला, कि हाँ ये बंदा तो इसको मैं देख नहीं सकता, आई कैन हेल्प इट, ही कैन ओनली हेल्प बिकॉज़ ही हैज मोर नॉलेज। या हाँ, जैसे मतलब मुझे पता है कि हर बार जाओगे तो वही पे करेगा, तो गैप बना दिया अपने यार आप ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ, जैसे अगर ग्रुप सेटिंग में अगर मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जैसे मनीष इज स्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल कि लाइक नहीं मुझे सिर्फ ये खाना है, एंड वी ऑलवेज आई एम फ्लेक्सिबल, तो वो ऐसे ही बन जाएगा ओवर टाइम, लाइक देन द पर्सन हु इज then if tomorrow I behave There is a slightly dispute here because he doesn't want to eat, तो ये अपना पैसे अलग सोचेगा। हाँ। ये कभी भी जाएगा, अगर बाकी नॉन वेजिटेरियन होंगे 10 लोग, तो इसको ये हमेशा बिल देखेगा और सोचेगा कि अच्छा मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है कि मुझे कम पे करना पड़ रहा है, क्योंकि Yeah. वहाँ पे डिस्प्यूट है बेसिक लेवल पे। अगर डिस्प्यूट नहीं होगा तो हो सकता है कोई नहीं सोचे, मतलब वो चीज, तो इसके दिमाग में हमेशा कॉन्शियस होगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये 400 ये ऐसे दिखता ही जैसे है। जो दारू नहीं पीता, अगर उसको ले जाओ वो फ्लिप हो जाएगा। मैंने 35 की बोतल पी 3000 की पी गया। भैया पानी मेरे घर पे चाहो। हाँ true, that's true. Yeah, there was a study done recently which is like just, I mean, it's kind of stupid, but basically like if it's statistically proven if people go out for group dinners and it's established beforehand in your head कि like it's going to be like split evenly, then everyone orders more. Yeah, that's true. कभी वहाँ देखा है कि दो ऐसे लोग जा रहे हो, मतलब मैं तो अपनी सुपर वाली जनरेशन में, Yeah. वो वहाँ पे आता है कि अब बिल कौन पे करेगा, और दोनों लड़ जाते हैं कि नहीं मैं पे But करूँगा, it's not नहीं worth the तुमने argument. लास्ट टाइम, मैं अरे मतलब तुम हमेशा करते हो, नहीं मैं बड़ा भाई हूँ तुम छोटे भाई हो, नहीं अब बड़ा, वो कहता मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं क्यों पे करूँगा, कह रहा कभी छोटे भाई को भी पे करने दो, वो पूरा चलता है पूरा डायनेमिक हाँ। कि कौन पे, पूरा एक गेम है, मतलब मैंने पे कर दिया तो मैं वन अप हो जाऊंगा, तुमने पे करा तो तुम वन अप हो जाओगे, तो मतलब वो बहुत ज्यादा मेंटल साइकोलॉजी वो चलती है कि अच्छा कैसे, मतलब मैंने तो 10-10 मिनट तक लोगों को लड़ते हुए देखा कि नहीं मैं करूं, वो वॉलेट रखो अपना, मैं निकालता हूं, नहीं वैसा there is a lot of- और हमारे जनरेशन में स्प्लिट करना, हाँ ओके हाँ। खत्म हो गया। अरे स्प्लिट वाइज पे डाल दिया सीधा अफर्मेशन। so this guy is also, मतलब एक also वो वाला कॉन्सेप्ट भी जहाँ पे एक लोग ज्यादा रहते हैं एक जगह और लैंड कम है, और एक जगह लैंड ज्यादा है और लोग कम है, तो उसने बहुत सही एक्सप्लेन किया कि लेट्स से अगर तुम्हारा इंडिया है जहाँ पे लैंड कम है लोग ज्यादा है, एक वेस्ट है जहाँ पे लोग ज्यादा है, मतलब लोग कम लोग है। कम है और लैंड ज्यादा है, हाउ विल वीमेन फेयर इन दीज टू सिचुएशंस, तो इज लाइक जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ पे लोग ज्यादा हैं वहां पे डाउरी होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब वो ह्यूमन कैपिटल है एक तरह से कि उसको देना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज वन मोर माउथ टू फीड मेल के लिए, तो देयर इज वन मोर माउथ टू फीड, तो इसको पैसा देना पड़ेगा। बट उधर जहाँ पे लैंड ज्यादा है वहां पे ब्राइट वेल्थ होगी, तो ये मतलब ये होता था कि वहां पे ब्राइट वेल्थ होती थी, इंडिया में डाउरी थी, ब्राइट वेल्थ में बंदा पे करता था रशिया। उसके ब्राइड के लिए, मतलब हर जगह होता था, पूरा हर जगह था, But मतलब why? इजिप्शियन सिविलाइजेशन सब कुछ, Because there's enough food. because That you was- are getting one human resource to Extra. इतनी अच्छा। लैंड है और तुम्हें बेसिकली वो काम वो तुम्हारा संभाल लेगी, नीचे अगर तुमने 10 स्लेव्स रखे हुए हैं तो शी विल बी हैंडलिंग स्लेव्स और समथिंग Yeah, लाइक दैट, yeah, सो यू yeah. हैव वन मोर हेल्पिंग हैंड, यहाँ पे वन मोर माउथ टू फीड है, यहाँ पे वन मोर हेल्पिंग हैंड है, तो यू आर पेइंग फॉर द हेल्पिंग हैंड, वहां पे वो तुम्हें दे रहा है क्योंकि वो है, मतलब वो, और इस सिचुएशन में हाउ एंड दिस गाय गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि कैसे इसकी वजह से पेट्रियार्की आएगी, तो उधर क्या होगा कि उधर वो लगेगा क्योंकि बंदे ने पे किया था, यू विल बिकम सिंबोलस विद प्रॉपर्टी, मतलब तो तुम थोड़ा ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हो गए क्योंकि वो प्रॉपर्टी की तरह डील करेगा, किसी चीज के लिए तुमने पैसा दिया तो वो हमेशा
वो रहेगा कि मतलब डिस्प्यूट रहेगा और वो प्रॉपर्टी रहेगी वहां, मतलब वहां पे तुम्हें हमेशा वो वन अप होगा क्योंकि उसने पे किया, वो वाला कॉन्सेप्ट कि वो वन अप है तो तुम हमेशा एज अ सेकंड रहोगे। इंडिया में क्या है, इंडिया में आई हैव सीन a lot of females have a lot of power inside the house at least, मतलब क्योंकि उन्होंने पैसा दिया होता है, क्योंकि वैसा होता है कि तुमने पैसे ले लिए, अगर डिस्प्यूट होगा हो सकता है पैसे वापस मांग ले कि अब तुम कहाँ से लोगे पैसे, तो वैसा होता है कि इंडिया में मतलब दे सेड कि इंडिया में जब तक बंदी पेरेंट्स के घर पे है शी विल बी मोर एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि पेरेंट्स कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर मान लो तुमने कुछ गलत कर दिया जाके तो मुझे ज्यादा डाउरी देनी पड़ेगी। उधर है पेरेंट्स कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि अगर तुमने कुछ गलत कर दिया मुझे कम पैसे मिलेंगे तो दोनों जगह females are exploited till they go out of the house. In India they are saying they are a little relieved after they get married क्योंकि पैसे का एक्सचेंज इधर से उधर हो रहा है rather than इधर से उधर, तो पेट्रियार्की इज लाइक कि ये रीजन था पेट्रियार्की का कि मतलब क्यों वो पॉजिटिव होने लगे लोग और ये वो पेरेंट्स को बाहर नहीं जाने देते थे और ये वो मतलब क्यों, पर बोल रहा है कि शादी के बाद वहां पे ज्यादा है यहाँ पे। बट ऐसे isn't it more related to मतलब कास्ट सिस्टम, जेंडर रोल जो सोसाइटी में प्ले करते जा रहे हैं rather than economics? हाँ मतलब but China is also similarly stressed for land and pressed for मतलब population बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और बहुत कम land है, but that is not the case there, right? चाइना में people are मतलब patriarchy है but dowry वाला सीन नहीं है। तो right now also the population also matters, right? The ratio also इंडिया में भी अभी ऐसा मुझे लग रहा है डाउरी की बात अब ब्राइड वेल्थ में जाने वाले हैं क्योंकि विमेन कम होते जा रहे हैं, तो अगर लोगों के लिए होगा ही नहीं इनफ तो सप्लाई डिमांड की वजह से तुम शिफ्ट ही हो जाओगे डाउरी से ब्राइड वेल्थ में। तो अभी जैसे चाइना में ब्राइड वेल्थ चलता है, मतलब चाइना में ऐसा है कि मुझे घर खरीदना पड़ेगा तभी मेरी शादी होगी, तो एक तरह से मैं पे कर रहा हूँ इनडायरेक्टली तुम्हें, मतलब मैं एस्टैब्लिश कर रहा हूँ कि मतलब मेरे पास घर है। इंडिया में भी इवेंचुअली यही होगा, अभी आगे जाके व्हेन वुमेन स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर्स तो मतलब यही होगा इंडिया में डाउरी से उधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं बट मतलब economics is a consequence of patriarchy, not patriarchy is a consequence of economics. In this case, economics came like so. You can dowry इधर से उधर जा रही है, फिर ब्राइड उधर से हो रही है, वो इसलिए क्योंकि patriarchy में और अगर नहीं तो how do you define the difference between patriarchy in the West and India? अगर अपने पास है ना फूड भी हो गया, सब कुछ हो गया, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब अच्छा हो गया तो भी no, I'm saying the basic factor is need of human resource versus need of like versus की मेरा तो बेसिक फैक्टर इज मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मुझे इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करना है, दैट इज माय बेसिक फैक्टर। वो दैट गिव्स राइज टू आई एम सेइंग इकोनॉमिक्स प्लस पार्टी एट द सेम टाइम। आई एम नॉट सेइंग इकोनॉमिक्स इज गिविंग राइज टू दिस, आई एम सेइंग दैट द बेसिक फैक्टर इज सर्वाइवल। इस जगह सर्वाइव करने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है, इस जगह सर्वाइव करने के लिए मुझे इस चीज की जरूरत है। नाउ व्हेन यू सीक योर जरूरत उसके बेसिस पे द इकोनॉमी राइजेस अप एंड पेट्रियार्की आल्सो राइजेस अप। मतलब बेसिक फैक्टर तो सर्वाइवल है, सर्वाइवल से कैसे आ रहा दोनों, तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कॉजेशन है, इसका कॉजेशन नहीं है, कोरिलेशन, मतलब इट वुड बी कोरिलेशन बिटवीन दीस टू। बेसिक फैक्टर सर्वाइवल की वजह से दोनों, मतलब लोग तो ऐसा पहले होते थे कि पूरे विलेज ब्राइड होती थी, मतलब वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, ब्राइड वेल दे नहीं पा रहे हैं, वो कोई गरीब लोग है, थोड़ा है नहीं उनके पास पैसे वैसे, तो सारे विलेज मिलके एक वुमेन उठा लाया, मतलब ऐसा होता था। और वो एक दिन जा रहे हैं सब उसके बाद एंड ही इज लाइक पहले सिचुएशन ऐसा होता था कि पैसे से तुम कोई काम की चीजें नहीं खरीद सकते थे, डेली वाली चीजें नहीं मिलती थी पैसे से तुम्हें लग्जूरियस चीजें मिलती थी, जाके मैन विमेन खरीदते थे, जाके वो ये खरीदते थे, मतलब वो अपने वो लेजर के लिए पैसे यूज करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि तुम्हें खाना खरीदना पड़ रहा है, वो नहीं होता था। मतलब उन्होंने रखा है कि बहुत पहले ऐसा था कि जब पहले डिस्प्यूट के लिए यूज होते थे पैसे, किसी ने मान लो मर्डर कर दिया और तुम्हें पैसे दिए, उस पैसे से तुम जनरली लग्जरी की चीज आते थे, मतलब पैसे का दिन भर दिन क्रेडिट पे चल रहा है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा खरीदना है, कुछ जाके वहां अपने पार्टी करनी है, फीस्ट में यूज होता था जैसे पैसे, कि एक बड़ा वो फ्यूडल लॉर्ड है जो सबको पार्टी दे रहा है, वहां पे यूज होंगे पैसे। मतलब जो बड़ी चीजें, मतलब फ्लैशी थिंग्स के लिए यूज होता था, नेसेसिटीज के लिए उन्होंने बोला कि मतलब वो भी जैसे like in slavery also women were removed from their homes and decontextualized
तब जाके उनकी वैल्यू डिटरमाइन हो सकती है, मतलब कि अब वैल्यू इधर ही नहीं तो किसी की वाइफ होगा, किसी के वो होगा, डॉटर होगी, व्हेन यू थिंक अबाउट दैट इट गेट्स मोर डिफिकल्ट टू डिह्यूमनाइज देम, मतलब फिर उसके बाद व्हेन यू उनका कॉन्टेक्स्ट हटाते हो देन ओनली यू कैन. And it's like slaves also now, right now we can't say what their thought process was, but a lot of slaves didn't think slavery was like something. So it's like that guy working for my granddad, he respects that guy, he's still a slave, but he is like, this is how life works. I was in debt and he accepts the debt. मतलब अभी वो rebel वाली चीज it doesn't come. So when you think that if there is hierarchy there will be rebellion, मतलब जो नीचे वाला है वो हमेशा ऑप्रेस फील करेगा, ऑप्रेस फील करना और रिबेल करना, और मतलब वो होगा ही होगा, मतलब ऐसा लोगों को लगता है. बट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मोस्ट जो हायरार्की में नीचे होते हैं वो कभी रिबेल नहीं करते बिकॉज दे थिंक इट्स अ वे ऑफ लाइफ. एक बहुत ही ब्लैक बंदा था जो उसने पूरा वो करा था, मतलब वो वहाँ की कंडीशंस को वो किया था, पॉपुलराइज किया था कि बहुत ज्यादा स्लेव्स हैं. उसने अपनी बुक में लिखा था, सबकॉन्शियसली लिख दिया उसने 2-3 सेंटेंसेस कि मतलब हमें तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि अच्छा हमें लगता था कि हमें ऑप्रेस से मतलब होती थी चीजें पूरी, बट हमें लगता था कि दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. तो मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब दे थॉट दैट दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. Cool. Exhausted. See the last question. ये वाले के खत्म होने के बाद बता दें. हाँ, good. आ जाना. बस हो गया. मतलब ये मैंने बाकी उसमें आया नहीं डिटेल में. ही आल्सो गोस टू कि इस्लाम कैसे था फर्स्ट जिसने अच्छे से discuss करेंगे exchange तो. और वो करा है, मतलब दे बहुत ही सही हो गया कि कैसे कैपिटलिज्म का बेस फॉर्म इस्लाम से आया है rather than और किसी भी सिविलाइजेशन से. मतलब जो हम अभी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे कॉर्पोरेशंस कंट्रोल हैव मोर कंट्रोल दैन स्टेट्स, दैट वाज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम इस्लाम. मतलब मिडिल ईस्ट इसीलिए इतना प्रॉस्पेरस हुआ था, बीच में मैथ्स हो गई थी उनके पास बहुत सारी और ये वो हो गया था जस्ट बिकॉज उनमें जो बिजनेसमैन थे और जो कॉर्पोरेशंस थे वो उनको, पर वहाँ पे ऑनर सिस्टम भी चलता था. मतलब अभी भी बिजनेस को वैसा होता है कि उनकी खराब रेटिंग आएगी तो उनका कस्टमर्स लूज करेंगे. ऐसे ही इस्लाम में भी होता था कि कोई बंदे ने अगर तुम्हें चीट किया है तो उसका वो खत्म हो गया सोसाइटी में, मतलब उसको लोग नहीं आगे करें, तो इसलिए लोग अच्छे से चलाते थे. सेम दिस गाइस लाइक कि वो हम हमारा अभी का कैपिटलिज्म भी वैसा ही है. मतलब कंपनीज हैव एन ऑनर सिस्टम एंड कंपनीज हैव मोर कंट्रोल दैन द गवर्नमेंट एंड दे आर रनिंग मतलब द शिट, एंड द बेसिक आइडिया कम्स फ्रॉम इस्लाम. Regarding the death from the parents, another interesting flip side of the coin is कि you can think like if you think in terms of space, हम लोग कितना तेज जाते हैं, तो you can say Earth rotate करती है hundreds of kilometers, फिर जब sun के around घूमती है thousands, sun घूमता है lakhs में, then galaxy घूमती है lakhs में, तो effectively in 1 hour we do 2.1 kilometers, 2.1 million kilometers in every hour, मतलब we travel in space. So you can say कि your parents without even asking you gave you a ticket on this spaceship called Earth and they didn't even ask you कि यार बैठना है इस spaceship पे ना. So it's a different way of thinking कि those who say we don't travel, you are actually traveling around in space. I'll end it with like a very interesting thought that guy had introduced कि there was an axial age 500 BC to like 1000 BC to 0 BC where all the religions sprung up. Buddhism came, Hinduism got this thing. Everyone started talking about spiritualism और क्या लोग घर पर जाने लगे, मतलब लोग जंगल में जाके वो करने लगे. सब जगह पूरा spiritualism हर जगह था, Christianity भी आई, सब कुछ आया उसी टाइम. Islam. तो he is like कि और दूसरा एक कोरिलेशन होता था कि सारा कॉइनेज उसी टाइम स्टार्ट हुआ. मतलब जितने किंग्स ने कॉइन वो करना चालू किया है, सारी मिलिट्री वो उसी टाइम बनी है. मिलिट्री, कॉइनेज, रिलीजन तीनों साथ में स्टार्ट हुए हैं. तो इसने अब इनका लिंक वो कर रहा था, मतलब कि कॉइनेज और वो कैसे लिंक है. तो व्हाट डू रिलीजन्स टॉक अबाउट, मतलब रिलीजन्स टॉक अबाउट कि मोस्ट ऑफ रिलीजन्स की एक माइंड है, एक बॉडी है. तो वो बोल रहा था इससे पहले कि बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, मतलब रियलिटी बनी किस चीज से, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे बेसिकली तुम कट करके सारी चीजें बना सकते हो. तुम एक तरह से सबसे छोटा यूनिट ऑफ अकाउंट ढूंढ रहे थे रिलीजन में, क्योंकि तुम ढूंढ रहे हो मॉलिक्यूल क्या है, सबसे बेस लेवल पे क्या एग्जिस्ट करता है, फॉर्म क्या चीज है. जो
मतलब गोल्ड को मनी में कन्वर्ट करना, एक तरह से गोल्ड इज अ फॉर्मलेस थिंग, उसको हम किसी भी शेप में फॉर्म करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब रिलीजन नहीं होते थे तो तुम किसी से पूछोगे तो ये नहीं बोलेगा कि मैं बॉडी हूँ, वो ये बोलेगा कि मैं सोल हूँ, मतलब वो बॉडी का कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन था ही नहीं। तो रिलीजन्स डिडंट गिव यू कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड एंड बॉडी। रिलीजन से पहले तो दोनों सेपरेबल थे ही नहीं, जैसे सेपरेबल हुए यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट बॉडी एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फॉर्म, और फिर तुम्हें ऐसा लगा कि मतलब अभी मैं कैसे चीजों को क्वांटिफाई कर सकता हूँ, कैसे चीजों को डिफाइन कर सकता हूँ फॉर्म। देन यू थॉट अबाउट गोल्ड एंड टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्मलेस दिस थिंग, एंड देन बेसिकली इज लाइक कॉइनेज कम्स फ्रॉम देयर। मतलब 4000 साल पहले 3000, मतलब पता नहीं चाणक्य कब था, बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया, 3000 साल हो गए, 2000 साल होने वाले होंगे शायद। तो उसने लिखा था द ट्रेजरी इज बेस्ड अपॉन माइनिंग, द आर्मी इज बेस्ड अपॉन ट्रेजरी, he who controls the treasury controls the world। तो स्टेट वही करते हैं, मतलब they control the treasury, मनी प्रिंट हो रहा है, उससे आर्मी चला रहे हैं, आर्मी ने तुम्हारा मार्केट्स क्रिएट किया, मार्केट्स क्रिएट हुए तो लोगों की अर्निंग हुई, अर्निंग हुई तो वो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दिया तो तुमने जो पैसा वो किया था तुम्हारे पास वापस आ गया, अब तुम रिसाइकिल करके अपना पैसे बदलो। तो पूरी साइकिल है कि हाउ स्टेट्स यूज मार्केट टू, मार्केट नहीं होगा तो वो टैक्स नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा तो तुम्हारे पैसे, तुम अगर तुम्हारे पैसे वर्थलेस हो जाएंगे बिना मार्केट में, तो किसी को पता नहीं है कि मार्केट नहीं होगा तो क्या होगा। Cool, as usual. Thanks.